Jai Narayan student, welcome back here. I hope all are well. And today discuss for electoral politics chapter number 3rd. And today topic is the system of election in India. And this lecture number is student 2nd. Explain the electoral constituency. Are you know that student कि I am already discussed the Haryana electing 90 MLA. So in India, an area-based system of representation is followed where the country is divided into a different areas for purpose of election, and these are called the electoral constituency. And every voters who lives in an area votes for one representative or Lok Sabha election. And India is divided into 543 constituency student 543 constituency, and two members are Anglo-Indian nominated by the President of India currently, and there are 542 constituency student, and the representative elected from each constituency is called the MP. MP means a student member of parliament. And for Vidhan Sabha election, each state is divided into a specific number of assembly constituency, and elected the representative of each assembly of constituency is called the member of legislative assembly, MLA. And each parliament constituency has a several assembly constituency within it, and the same principle applies for the पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन. तो जैसा आपने देखा कि जैसे स्टेट में और आपने देखा किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है और कैसे सेंट्रल क्या काम होता है, और सेम हमारे लोकल गवर्नमेंट हो गई जैसा कि पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन. और ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड डेट आर लाइक अ कंस्टेंसी. तो इस तरीके से वहाँ पे भी कंस्टेंसी होती है. और आपको क्लियर है जैसा कि हरियाणा की स्टोरी हमने डिस्कस की थी और वहाँ पे भी आपने इलेक्शंस देखा. तो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन, एंड ईच विलेज टाउन इज डिवाइडेड इनटू several wards that are like a constituency, and each ward elects are one member of the village or an urban local bodies. And sometimes these constituency are counted as seats for each constituency represent one seat in the assembly. So when you say that I'm already discussed the Haryana assembly ki Lok Dal won 60 seat in Haryana, it is means ki the candidate of Lok Dal won is 60 assembly constituency. So in the state of this Lok Dal had 60 MLA in the state assembly. तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर प्रोसीजर इलेक्ट्रल कंस्टेंसी क्या होती है. नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे. स्टूडेंट आई एम ऑलरेडी डिस्कस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो मेन फीचर्स क्या है स्टूडेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू, रिच एंड पुअर बोथ. ऑल वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, चाहे वो रिच हो और चाहे पुअर के, वोट सबके इक्वल हैं, इक्वल वैल्यू है. एंड दिस ईच कंस्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशंस लिविंग विद इन इट. फॉर एग्जांपल आपको हम एक बता रहे हैं कि यस लाइक यूपी हैज़ 80 सीट्स इन लोकसभा, एंड लोकसभा हैज़ द टोटल सीट्स टू गेट द इलेक्टेड इन इज 550. तो 530 स्टेट प्लस 20 यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन लाइक जम्मू एंड कश्मीर वेरी लेस 5 सीट. तो आपने देखा कि सबसे जो हमारी सबसे गुड कंस्टेंसी है, जो सबसे अच्छी सीट्स है, वो हमारी 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश. ओके, लोकसभा. स्टूडेंट इलेक्शन इन इंडिया. तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंडिया आई एम ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट कि लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years, एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन. स्टूडेंट आर यू नो डैट कि लोकसभा एंड विधानसभा इज असेंबली इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years, after every 5 years, and after 5 years the term of all the elected representatives of comes to an election, comes to an end of election are held in all constituency at the same time, and this is called the general election. But sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is known as by-election. And electoral constituency student like in India we follow our base system of representative
तो द कंट्री डिवाइडेड इंटू अ डिफरेंट एरियाज कॉल्ड इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी फॉर अ पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड फॉर लोकसभा इलेक्शन स्टूडेंट लोकसभा इलेक्शन कंस्टिट्यूंसी it means कि India is divided into 543 constituency. तो the representative elected from each constituency is called the MP. MP student means कि member of parliament. तो for Vidhan Sabha election each state is divided into a specific number of assembly constituency and elected representative of each assembly constituency is called the MLA. Okay, are you know that assembly में हम लोग ने पढ़ा था हरियाणा assembly में कि MLA चौधरी देवीलाल किस तरीके से आए. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई. और किस तरीके से हमारा जो थर्ड टीयर है जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो सिमिलरली सेम आपने अभी जैसे पढ़ा, सेंट्रल का पढ़ा, स्टेट में एमएलए पढ़ा, उनकी किस तरीके से. तो ईच वोट विल हैव इक्वल वैल्यू, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर के वोट्स की सेम वैल्यू हो. ओके स्टूडेंट. एंड सिमिलरली ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन ईच विलेज एंड टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. स्टूडेंट आर यू नो डैट कि रिजर्वेशन फॉर SC and ST, तो सम कंस्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट and scheduled tribes. So in a SC reserve constituency only someone who belongs to SC, okay, SC and ST. So SC can stand for election and similarly only those belonging to the ST to contest the election from a constituency reserved for the ST. तो रिजर्वेशन इन लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल, तो अलग अलग लेवल में सबके रिजर्वेशन डिफरेंट है. जैसे शेयर द एग्जांपल कि a few seats in Lok Sabha are reserved for scheduled caste, SC and scheduled tribe. So this is the number in proportion of their share in the total population. Suppose in the year of 2012 तो 84 seats were reserved for the SC and 47 for the ST of Lok Sabha. तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देखा कि करेंटली इन लोक सभा 84 सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब. ओके, एंड 2012 की बात है. तो दिस नंबर ऑफ इज प्रोपोर्शन फॉर देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन एंड दस रिजर्व द सीट फॉर SC and ST एंड डू नॉट टेक अवे द लेजिटमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप. तो दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल इन मेनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपालिटी एंड कॉर्पोरेशन. तो लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड classes OBC as well. So however the proportion of seats reserved varies from the state to state. So similarly 1/3 of the seats, I am already discussed the student in this part कि 1/3 of the seats are reserved in rulers and urban local bodies for women candidates. Okay student. So now voter list. तो वोटर लिस्ट देन कम्स अ वोटर लिस्ट, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल इन प्रिपेयर्ड मच बिफोर इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. दिस इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल कहा जाता है या वोटर लिस्ट कहा जाता है. ओके, तो स्टूडेंट के इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन एंड दिस लिस्ट इज ऑफिशियली called the election roll, is commonly known as the voter list. The right to vote of falls under the universal adult franchise. It means कि all the citizen aged of 18 years and above can vote in the election regardless of his or her caste, religion and gender. और इस तरीके से यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है स्टूडेंट, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर जेंडर के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. और इस तरीके से वोटर लिस्ट किस तरीके से रेडी होती है ये आपको अभी मैंने बताया. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. और अब ये देखा जाता है कि कौन, जैसे हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई, किसी ने वहाँ पर हो सकता है कि आज इलाहाबाद में रह रहे, कोई लखनऊ चला गया, तो अब प्लेस को ही छोड़ दिया, तो वहाँ पर फिर वो सारी चीज़ें वोटर लिस्ट से डिलीटेड होती रहती है. तो एज अ न्यू पर्सन उसमें अगर कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमेशा मेंटेन किया जाता रहता है. तो अटेन द वोटिंग एज आपको पता है 18 अबव, नेम्स एडेड टू द वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें हमेशा मूव ऑन होती रहती है, चेक किया जाता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट में नेम है और हो सकता है कि किसी की पोस्टिंग हो गई, वो कहीं से किसी वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला गया, या किसी की डेथ हो गई, तो ये सारे नेम को डिलीटेड करते रहते हैं उस वोटर लिस्ट से. और एक कम्प्लीटली मैनर से यहाँ पर काम होता है स्टूडेंट. तो एक रिवीजन हम छोटा सा फिर से देंगे कि आपने देखा कि जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है वो एवरी 5 ईयर्स हमेशा चेक होती रहती है.
और ये इंश्योर कर लीजिए स्टूडेंट कि दिस इज़ द मेनली कि डेट इज़ रिमेन अपडेट, हमेशा एक अपडेट वहाँ पे होता रहता है। और आपको अभी मैंने बताया कि कोई भी कंट्री में आपने देखा ऑल द सिटीजन एज द 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, और एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस हिज एंड हर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। और जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विदाउट अनसाउंड माइंड जो होते हैं लोग, और कैन टू बी डिनाइड, हमेशा उनको डिनाई इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो 2 साल की मान लीजिए जेल में थे, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर हमेशा एक रेयर सिचुएशन में क्या होता है कि डिनाई कर दिया जाता है, राइट टू वोट नहीं होता है। बट मेनली गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वोटर्स की एलिजिबिलिटी, नेम लिस्ट हमेशा फाइनल करती रहती है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपके घर से भी कोई वोट देने जाता होगा तो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, इलेक्शन फ़ोटो में आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम इपिक कहते हैं, EPIC, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आर यू नो डैट कि हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जैसे आप लोग स्कूल में भी आते हो तो एक इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाँ ये श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो सेम यहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे कि वोट जब भी लोग देने जाते हैं तो अपना इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। तो द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस द कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, और इस तरीके से सभी को वहाँ मिलता है। एंड द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट ऑफ वोट, एंड सो दैट no one can vote for someone else, and but the card is not yet compulsory for voting. For voting the voters can show many other proof, identity card। अगर वो कभी नहीं लाए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वोटिंग्स नहीं दिया जाएगा, तो वो अपने साथ एक प्रूफ लाएं, आइडेंटिटी कार्ड लाएं, राशन कार्ड लाएं या ड्राइविंग लाइसेंस लाएं एट्सेट्रा। तो आर यू अंडरस्टूड स्टूडेंट की वोटर लिस्ट में कैसे वर्किंग होती है, क्या तो आपने कम्प्लीटली एक प्रोसीजर देखा इसमें कि किस तरीके से 5 इयर्स के इंटरवल में कितना वर्किंग होता है। तो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड स्टूडेंट सो इम्पॉर्टेंट, हमेशा ये इसका फुल फॉर्म होता है इपिक। इपिक का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट हु इज़ एन MLA। फर्स्टली MLA फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। Every 5-year election is an announce for state legislative assembly, and political parties nominate their people for each constituency. All member of the legislative assembly are elected on the basis of, ये किस थ्रू इलेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, अडल पंचायती, एंड वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूंसी। तो स्टूडेंट MLA is a representative elected by the voters of an electoral district constituency to the legislative of a state in the Indian system of government. Student, I am already discussed the Patalpuram story. So you know that ki not immediately action for the health related MLA. So this is the main responsibility of MLA. So do you know the MLA of your area also, and mainly कि member of the legislative assembly are elected by the people. तो सब जगह every state में in Indian has a legislative assembly student, हर जगह legislative assembly होती है और हर जगह का MLA होता है, जैसा कि अब हम लोग ने पतालपुरम में पढ़ा और वहाँ देखा। तो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके, इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दे कैन they them become members of the legislative assembly and also from the government. So in this way we say that the MLA represent people, okay, represent the people. So for example you are already discussed the understand this better कि Patalpuram story. So every state in India has a legislative assembly, okay. Now see, this is the legislative assembly, and legislative assembly is the main debate in the legislative assembly, and this assembly was going to have a debate on a current problems, and during this time of MLA can express their opinion and ask question related to the issues or give suggestion about what should be done by the government, and those who wish to can respond to this the minister and replies the question and tries to assure the assembly and adequate steps are been taken. So the chief minister and the other minister have to take
decision and run the government, and we usually student hear about them or see them in the news channel or in papers. Whatever any decision and being taken have to approved by the members of the legislative assembly. So in a democracy these member can ask question, debate. So debate is an important part of issues, okay, important part of current issues, and decide where money should be spent, etc. तो मेन you are know that कि debate in the legislative assembly, and this problem is solved for the current problem and discussion, etc. Okay, now let's see next part. Who is an MLA? I am already explain the electoral constituency. Are you know that student कि I am already discussed the Haryana electing 90 MLA. So in India, an area-based system of representation is followed where the country is divided into a different areas for purpose of election, and these are called the electoral constituency. And every voters who lives in an area votes for one representative or Lok Sabha election. And India is divided into 543 constituency, student, 543 constituency, and two members are Anglo-Indian nominated by the President of India currently, and there are 542 constituency, student, and the representative elected from each constituency is called the MP. MP means a student member of parliament. And for Vidhan Sabha election each state is divided into a specific number of assembly constituency, and elected the representative of each assembly of constituency is called the member of legislative assembly, MLA. And each parliament constituency has a several assembly constituency within it, and the same principle applies for the पंचायत and municipality election. तो जैसा आपने देखा कि जैसे स्टेट में और आपने देखा किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है और कैसे सेंट्रल क्या काम होता है, और सेम हमारे लोकल गवर्नमेंट हो गई जैसा कि पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन, और ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड डेट आर लाइक अ कंस्टेंसी. तो इस तरीके से वहाँ पे भी कंस्टेंसी होती है. और आपको क्लियर है जैसा कि हरियाणा की स्टोरी हमने डिस्कस की थी और वहाँ पे भी आपने इलेक्शंस देखा. तो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन, एंड ईच विलेज टाउन इज डिवाइडेड इनटू several wards that are like a constituency, and each ward elects are one member of the village or an urban local bodies. And sometimes these constituency are counted as seats, for each constituency represent one seat in the assembly. So when you say that I'm already discussed the Haryana assembly ki Lok Dal won 60 seat in Haryana, it is means ki the candidate of Lok Dal won is 60 assembly constituency. So in the state of this Lok Dal had 60 MLA in the state assembly. तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर प्रोसीजर इलेक्ट्रल कंस्टेंसी क्या होती है. नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे. स्टूडेंट आई एम ऑलरेडी डिस्कस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो मेन फीचर्स क्या है स्टूडेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू, रिच एंड पुअर बोथ. ऑल वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, चाहे वो रिच हो और चाहे पुअर के, वोट सबके इक्वल हैं, इक्वल वैल्यू है. एंड दिस ईच कंस्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशंस लिविंग विद इन इट. फॉर एग्जांपल आपको हम एक बता रहे हैं कि यस लाइक यूपी हैज़ 80 सीट्स इन लोकसभा, एंड लोकसभा हैज़ द टोटल सीट्स टू गेट द इलेक्टेड इन इज़ 550. तो 530 स्टेट प्लस 20 यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, लाइक जम्मू एंड कश्मीर वेरी लेस 5 सीट. तो आपने देखा कि सबसे जो हमारी सबसे गुड कंस्टेंसी है, जो सबसे अच्छी सीट्स है, वो हमारी 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश. ओके, लोकसभा. स्टूडेंट इलेक्शन इन इंडिया. तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंडिया आई एम ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट कि लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years, एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन. स्टूडेंट आर यू नो डैट कि लोकसभा एंड विधानसभा इज असेंबली इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years, after every 5 years, and after 5 years the term of all the elected representatives of comes to an election, comes to an end of election are held in all constituency at the same time, and this is called the general election. But sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is known as by election.
And electoral constituency student, like in India we follow our base system of representative. So the country divided into a different areas called electoral constituency for a purpose of election. And for Lok Sabha election student, Lok Sabha election constituency, it means कि India is divided into 543 constituency. So the representative elected from each constituency is called the MP. MP student means कि member of parliament. तो for Vidhan Sabha election, each state is divided into a specific number of assembly constituency, and elected representative of each assembly constituency is called the MLA. Okay, are you know that assembly में हम लोग ने पढ़ा था हरियाणा असेंबली में कि MLA चौधरी देवीलाल किस तरीके से आए. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई. और किस तरीके से हमारा जो थर्ड टीयर है जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो सिमिलरली सेम आपने अभी जैसे पढ़ा, सेंट्रल का पढ़ा, स्टेट में MLA पढ़ा, उनकी किस तरीके से. तो ईच वोट विल हैव इक्वल वैल्यू, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर के वोट्स की सेम वैल्यू हो. ओके स्टूडेंट. एंड सिमिलरली ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन, ईच विलेज एंड टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. स्टूडेंट, आर यू नो डैट कि रिजर्वेशन फॉर SC and ST, तो सम कंस्टेंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट and scheduled tribes. So in a SC reserve constituency, only someone who belongs to SC, okay, SC and ST. So SC can stand for election, and similarly only those belonging to the ST to contest the election from a constituency reserved for the ST. तो रिजर्वेशन इन लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल, तो अलग अलग लेवल में सबके रिजर्वेशन डिफरेंट है. जैसे शेयर द एग्जांपल कि a few seats in Lok Sabha are reserved for scheduled caste, SC and scheduled tribe. So this is the number in proportion of their share in the total population. Suppose in the year of 2012, so 84 seats were reserved for the SC and 47 for the ST of Lok Sabha. तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देखा कि करेंटली इन लोक सभा 84 सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब. ओके, एंड 2012 की बात है. तो दिस नंबर ऑफ इज प्रोपोर्शन फॉर देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन एंड दस रिजर्व द सीट फॉर SC and ST एंड डू नॉट टेक अवे द लेजिटमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप. तो दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल इन मेनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपालिटी एंड कॉर्पोरेशन. तो लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड classes, OBC as well. So however the proportion of seats reserved varies from the state to state. So similarly 1/3 of the seats, I am already discussed the student in this part कि 1/3 of the seats are reserved in rulers and urban local bodies for women candidates. Okay student. So now voter list. तो वोटर लिस्ट देन कम्स द वोटर लिस्ट, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल इन प्रिपेयर्ड मच बिफोर इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. दिस इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल कहा जाता है या वोटर लिस्ट कहा जाता है. ओके, तो स्टूडेंट के इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, एंड दिस लिस्ट इज ऑफिशियली called the election roll, is commonly known as the voter list. The right to vote of falls under the universal adult franchisee. It means कि all the citizen aged of 18 years and above can vote in the election regardless of his or her caste, religion and gender. और इस तरीके से यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है स्टूडेंट, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर जेंडर के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. और इस तरीके से वोटर लिस्ट किस तरीके से रेडी होती है ये आपको अभी मैंने बताया. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. और अब ये देखा जाता है कि कौन, जैसे हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई, किसी ने वहाँ पर हो सकता है कि आज इलाहाबाद में रह रहे, कोई लखनऊ चला गया, तो अब प्लेस को ही छोड़ दिया, तो वहाँ पर फिर वो सारी चीज़ें वोटर लिस्ट डिलीटेड होती रहती है. तो एज अ न्यू पर्सन उसमें अगर कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमेशा मेंटेन किया जाता रहता है. तो अटेन द वोटिंग एज आपको पता है 18 अबव, नेम्स एडेड टू द वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें हमेशा मूव ऑन होती रहती है, चेक किया जाता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट में नेम है और हो सकता है कि किसी की पोस्टिंग हो गई, वो कहीं से किसी वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला गया, या किसी की डेथ हो गई, तो ये सारे नेम को डिलीटेड करते रहते हैं उस वोटर लिस्ट से. और एक कम्प्लीटली मैनर से यहाँ पर काम होता है स्टूडेंट. तो एक रिवीजन हम छोटा सा फिर से देंगे कि आपने देखा कि
जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है वो एवरी 5 ईयर्स हमेशा चेक होती रहती है। और ये इंश्योर कर लीजिए स्टूडेंट कि दिस इज़ द मेनली कि डेट इज़ रिमेन अपडेट, हमेशा एक अपडेट वहाँ पे होता रहता है। और आपको अभी मैंने बताया कि कोई भी कंट्री में आपने देखा ऑल द सिटीजन एज द 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, और एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस हिज एंड हर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। और जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विदाउट अनसाउंड माइंड जो होते हैं लोग, और कैन टू बी डिनाइड, हमेशा उनको डिनाई इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो 2 साल की मान लीजिए जेल में थे, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर हमेशा एक रेयर सिचुएशन में क्या होता है कि डिनाई कर दिया जाता है, राइट टू वोट नहीं होता है। बट मेनली गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वोटर्स की एलिजिबिलिटी, नेम लिस्ट हमेशा फाइनल करती रहती है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपके घर से भी कोई वोट देने जाता होगा तो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, इलेक्शन फ़ोटो में आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम इपिक कहते हैं, EPIC, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आर यू नो डैट कि हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जैसे आप लोग स्कूल में भी आते हो तो एक इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाँ ये श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो सेम यहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे कि वोट जब भी लोग देने जाते हैं तो अपना इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। तो द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस द कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, और इस तरीके से सभी को वहाँ मिलता है। एंड द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट ऑफ वोट, एंड सो दैट no one can vote for someone else, and but the card is not yet compulsory for voting. For voting the voters can show many other proof, identity card। अगर वो कभी नहीं लाए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वोटिंग्स नहीं दिया जाएगा, तो वो अपने साथ एक प्रूफ लाएं, आइडेंटिटी कार्ड लाएं, राशन कार्ड लाएं या ड्राइविंग लाइसेंस लाएं एट्सेट्रा। तो आर यू अंडरस्टूड स्टूडेंट की वोटर लिस्ट में कैसे वर्किंग होती है, क्या तो आपने कम्प्लीटली एक प्रोसीजर देखा इसमें कि किस तरीके से 5 ईयर्स के इंटरवल में कितना वर्किंग होता है। तो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड स्टूडेंट सो इम्पॉर्टेंट, हमेशा ये इसका फुल फॉर्म होता है इपिक, इपिक का फुल फॉर्म होता है। नाउ स्टूडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एवरी स्टेट हैज़ इट्स लेजिस्लेचर। Some states have only one house, it means कि unicameral legislature and legislative assembly, and some states have 2 houses, bicameral legislative, and legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. It means student कि state is the legislature is the 2 parts divided, first legislative council and second is the legislative assembly. But legislative council is the upper house and Vidhan Parishad, and legislative assembly is the lower house and Vidhan Sabha. Now next, student, who is an MLA? Firstly, MLA full form member of legislative assembly. Every 5-year election is an announce for state legislative assembly, and political parties nominate their people for each constituency. All member of the legislative assembly are elected on the basis of, ये किस थ्रू इलेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, अडल पंचायती, एंड 1 member is elected from 1 constituency. तो स्टूडेंट, MLA is a representative elected by the voters of an electoral district constituency to the legislative of a state in the Indian system of government. Student, I am already discussed the Patalpuram story. So you know that कि not immediately action for the health related MLA. So this is the main responsibility of MLA. So do you know कि the MLA of your area also, and मेनली कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सब जगह एवरी स्टेट में इन इंडियन हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टूडेंट, हर जगह लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर जगह का एमएलए होता है, जैसा कि अब हम लोग ने पतालपुरम में पढ़ा और वहाँ देखा। तो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके, इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दे कैन they them become members of the legislative assembly and also from the government. So in this way we say that the MLA represent people, okay, represent the people,
तो फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑलरेडी डिस्कस द अंडरस्टैंड दिस बेटर कि पतालपुरम स्टोरी. तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, नाउ सी, this is the legislative assembly, and legislative assembly is the main debate in the legislative assembly, and this assembly was going to have a debate on current problems, and during this time of MLA can express their opinion and ask question related to the issues or give suggestion about what should be done by the government, and those who wish to can respond to this the minister, and replies the question and tries to assure the assembly and adequate steps are been taken. So the chief minister and the other minister have to take a decision and run the government, and we usually student hear about them or see them in the news channel or in papers, whatever any decision and being taken have to approved by the members of the legislative assembly. So in a democracy these member can ask question, debate. So debate is an important part of issues, okay, important part of current issues, and decide where money should be spent, etc. तो मेन you are know that कि debate in the legislative assembly, and this problem is solved for the current problem and discussion, etc. Okay, now let's see next part. Who is an MLA? I am already discussed. This is a full form, a member of legislative assembly. और आप लोग सुनते हैं कि विधायक और विधानसभा का सदस्य, और an MLA is a member of the legislative assembly. I am already discussed. He is elected by the people. In this way he represent the people, and these MLAs belong to different political parties, and some MLAs have dual responsibility. One is MLA and other as minister. You can see that in this picture that is the same जो सेंटर पार्ट ऑफ द स्पीकर गुजरात, ये जो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है गुजरात का है, और देखिए यहाँ पर स्पीकर मेन सेंटर पार्ट में जो टॉप पे हैं, दिस इज़ द स्पीकर वहाँ के हैं, और इधर देखिए CM है इस साइड, और इधर आपके हो गए अपोजिंग पार्टी और मिनिस्टर्स. तो ये आपका हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली. और